So, welcome students. This is the very first lecture of Mathematics 12th State Board. In this lecture, we are going to see pair of straight line chapter of paper 1. This chapter has a weightage of 4 marks and including option, the weightage is of 6 marks. So, in all, there will be a total of 6 marks questions in your board exam, out of which 4 marks question you can attempt. So, as the name of this chapter is pair of straight lines, so before starting this chapter, one must know about the equations of straight line, how to write the equation of a straight line. So there are various types of equations of straight lines. As you can see, I have gathered some of the types of equations of straight lines here. So before starting this chapter, we will see one must know about the basics of equations of straight line, how to write the equation of straight line. So this is the lecture 4.1, the very first lecture. Okay, so let me start. The very first type of equation of straight line is two-point form. Now in this two-point form equation of straight line, will be given 2 points on the straight line, and by using those 2 points one can write the equation of that straight line. Suppose this is my straight line on which, suppose these are the 2 points P and Q. The coordinates of P are x1 y1 and coordinates of Q are x2 y2. So in that case, the equation of such a straight line having these 2 points will be y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to x minus x1 upon x2 minus x1. So this is called as 2-point form. So whenever the 2 points on a straight line is given, then in that case we are going to use this equation. Second type of equation is slope point form. So whenever we have the slope of a straight line and we have one point which lies on that straight line, then in such cases the equation of straight line will be like this: y minus y1 is equals to m into x minus x1. Suppose this is that line, okay, and P be any point on that line, and suppose m is the slope of the line, then in that case the equation of this line will be y minus y1 is equals to m into x minus x1. Then third type is slope intercept form. Suppose we have the slope of line, straight line, and we have along with y-intercept of the line is also given. Suppose in that case the equation is y is equals to mx plus c. Now this is the well-known equation which you are using from the lower classes. If suppose I consider a straight line in xy plane like this is my straight line AB, okay, it intersects x-axis at point A and y-axis at point B, then this length OA is called as x-intercept, okay, and the length OB is called as y-intercept. So suppose the slope of this line m is given, and amongst these two intercepts y-intercept is given, suppose that is c, then in that case the equation is y is equals to mx plus c. The next type is double intercept form. If suppose in the straight line only two intercepts are given, x-intercept and y-intercept, and nothing else is given, then in that case the equation of the straight line is written like this: x upon a plus y upon b is equals to 1. So this is called as double intercept form. And then there is normal form. Though this form is, we are not going to use this normal form of equation of straight line in this chapter, but in paper 2, I think in differential equation chapter, we are going to use this form. This one as well as slope intercept form. Sorry, double intercept form. Double intercept form, there is one more chapter in this paper 1, that is linear programming problem. In that chapter particularly, we'll be using this equation, double intercept form. But for this chapter, mostly 2-point form, slope point form and slope intercept form will be used. Okay, so let me not explain this normal form. I will explain it in whenever it will be required, but you are supposed to write all these things, each and everything, in your fair copy. Okay, then the most important form of equation of straight line is general form. As you can see that general form of equation of straight line is like this: ax plus by plus c, where a, b, c are real numbers. So an equation in which x and y, both the variables are linear, okay, all the terms are on left hand side and right hand side is 0. This form of equation of straight line is called as general form of equation of straight line. Okay, then in this general form of equation of straight line, whenever this general form of equation of straight line is given, then you have to remember this formula of slope, how to write the formula, how to write the slope whenever a general form of equation of straight line is given. So slope m is given by minus of, you can see that, coefficient of x,
Now what is the coefficient of x here? It is a, and divided by coefficient of y. What is coefficient of y here? It is b. So whenever the equation of straight line is given in general form, then in that case the slope is given by minus of a upon b. And then similar formula for x-intercept and y-intercept, but these are of no use. The most important is this one, slope of the line, it is minus a upon b. So these were the basics. In fact, these were the types of equations of straight lines. Now the very first topic of this chapter is combined equation of two lines, or it is also called as joint equation. How to write the combined equation of two lines? Okay, so for writing the combined equation or joint equation of two lines, one must have two lines, two straight lines. Okay, now onwards, throughout this chapter, whenever a straight line will be required, then we are going to use जनरल फॉर्म ओनली. ओके, सो सपोज मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन्स है. ओके, अब मुझे स्ट्रेट लाइन जब भी लेना है तो मैं उसको इस फॉर्मेट में लूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब मेरे को दो स्ट्रेट लाइन्स लिखने हैं, तो मैं इसमें क्या क्या चेंज करूंगा? मैं इसको ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरे को किस तरह से लिखूंगा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. तो ये हो गए मेरे दो स्ट्रेट लाइन्स. है जनरल फॉर्म में ही, बट दो लिखने हैं मुझे. तीन लिखने रहते तो मैं क्या लिखता है इसमें? ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री. ओके, सो दीज आर द जनरल इक्वेशंस. तो सपोज दो स्ट्रेट लाइन्स मेरे पास है ये दो, तो इनको ज्वाइन कैसे करते हैं? ज्वाइन करने से पहले ये समझना है हमको कि स्ट्रेट लाइन्स के नोटेशंस किस तरह से होते हैं. सो लेट यू, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. जस्ट नाउ आई हैव रिटन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रेट लाइन. नाउ हियर what is the meaning of u and v? So you can see that u means the left hand side of this equation. That means the value of u is the expression on this left hand side, that is a1x plus b1y plus c1. This expression is denoted by u, and left hand side expression of this second equation is denoted by v. So by using this notation, I can write this first equation as, instead of writing a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, in short I can write it as u is equals to 0. Similarly, the second equation I can write it as v is equals to 0. So u and v, they denotes the left hand sides of this general form. Okay, don't get confused. So if suppose we have two straight lines, u is equals to 0 and v is equals to 0, okay, then the combined equation CE, or it is also called as joint equation, is given by the formula u into v is equals to 0. Once again, if u is equals to 0 and v is equals to are the two straight lines, where u and v, they are what? U is this a1x plus b1y plus c1, v is what? a2x plus b2y plus c2. So in that case, in order to obtain the joint equation or combined equation, what I have to do? I have to multiply these left hand sides, expression of u and expression of v, and I have to equate it to 0. So combine करने का मतलब क्या है? हम लोग join कर रहे दोनों equations का left hand side, and that too by means of product. बस, तो आपको दोनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड ज्वाइन करना है, इस तरह से प्रोडक्ट कर लेना है, और उसको किसके साथ इक्वेट करना है? जीरो के साथ इक्वेट करना है. इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? कंबाइंड इक्वेशन. सो लेट u इज दिस, v इज दिस, बी द टू लाइन्स, देन देयर कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय u इंटू v इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 113 पे सॉल्व एग्जाम्पल 1 दिया है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन्स. ओके, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ, बाद में सॉल्व एग्जाम्पल 2 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 3, ये पेज नंबर 113 के ऊपर है. सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल आप लोगों को करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करके दूंगा. ये तीनों क्वेश्चंस जो है 1, 2 एंड 3, ये कंबाइंड इक्वेशन से रिलेटेड है. ओके, सो लेट मी डू दैट फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल. Okay, so the question is, solve example 1, find the combined equation of the lines x plus y minus 2 is equals to 0, and second line is given by 2x minus y plus 2 is equals to 0. Okay, see the format of solution. You have to consider, first you have to denote both the equations. So let u, फर्स्ट इक्वेशन, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या ऐसे डिनोट होगा? u से, u विच मीन्स x प्लस वाई माइनस 2 एंड इट इज इक्वल टू 0, एंड v मीन्स व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बी द टू लाइन्स. ये दो लाइन्स हमको गिवन है जिनका हमको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए. देन देयर कंबाइंड इक्वेशन, और समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जॉइंट इक्वेशन, इज गिवन बाय, पहले इसका फॉर्मूला लिखना है, u v इज इक्वल टू 0.
तो u का मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड, u मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, v मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, किसका, सेकंड इक्वेशन का, u मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सो कंबाइंड इक्वेशन को क्या फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अभी पहले ब्रैकेट में मैं u का एक्सप्रेशन रखूंगा x प्लस वाई माइनस 2, एंड दूसरे ब्रैकेट में मैं v का एक्सप्रेशन रखूंगा 2x माइनस वाई प्लस 2। ओके, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। सो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, कैन यू टेल मी, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2x वाई, ओके, y इंटू 2x, 2x वाई, ओके, देन माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2y, देन माइनस 4x प्लस 2y एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बस कंबाइंड इक्वेशन बन चुका है, बस आपको इसको अरेंज करना है। पहले हायर डिग्री टर्म्स रखना है, जैसे 2x स्क्वायर एक ही टर्म है x स्क्वायर वाला, y स्क्वायर वाला भी सिंगल एक टर्म है, ओके। उसके बाद में xy वाले टर्म्स कितने हैं, ये दो टर्म्स है, 2xy एंड माइनस एक्स वाई, इट विल बी प्लस एक्स वाई, ओके। देन x वाला टर्म क्या है, 2x एंड माइनस 4x, इट इज़ माइनस 2x, y वाले टर्म्स 2y प्लस 2y प्लस 4y, एंड कॉन्स्टेंट टर्म एक ही है, दैट इज माइनस 4। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फाइनल कंबाइंड इक्वेशन। क्या किया है, कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के साथ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और राइट हैंड साइड को कैसे इक्वेट किया है, 0 के साथ। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड बेसिक टॉपिक, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट इस पर नहीं करूँगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल 2 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 3 बिना देखे आप लोग कर लेना, और आपके फेयर कॉपी में इसको लिख लेना। ये भी एग्जाम्पल आपने नोट डाउन करना है, याद रहे सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली, सारी ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। अब इसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल 2 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 3 ये आपके लिए होमवर्क है, ओके। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए मैंने नया जो टेक्स्ट बुक आया है उसका ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप पे शेयर किए हैं ऑलरेडी, उसको फॉलो करते रहिए, उसको देखते रहिए। अब उसी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 119 पे एक्सरसाइज 4.1 है। अब इस एक्सरसाइज 4.1 में आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ओके। इसका थर्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, किसका, क्वेश्चन 1 का। फर्स्ट एंड सेकंड आपको करना है, क्वेश्चन 1 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। ये कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 119 पे है, ठीक है। किसके क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4.1 की, ठीक है। इसी क्वेश्चन 1 का मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करा के दे रहा हूँ। इसमें मेरे को एक बात आपको बतानी है। सो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन of the lines passing through 2,3 and parallel to the coordinate axis. Okay, now see, कंबाइंड इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले दिमाग में रखना, कंबाइंड इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, दो स्ट्रेट लाइन्स चाहिए, इनफैक्ट दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस चाहिए, ओके। बट यहाँ पे किसी स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन नहीं दिया है। अब क्या दिया है डेटा, पहले इक्वेशंस आपको बनाने पड़ेंगे, बाद में कंबाइन करने का काम बहुत ही सिंपल सा है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले मेन काम आपका क्या है, इक्वेशंस को जनरेट करना। सो किस टाइप के स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे है वो पहले देख लेते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2,3, यानी ऐसे दो लाइंस कैसे है, वो 2,3 पॉइंट से पास हो रहे हैं, ओके। मैं 2,3 पॉइंट जो है एक्स वाई प्लेन में बना लेता हूँ। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ओके। इसमें 2,3 पॉइंट, तो जैसे 1 यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 2 एंड सपोज दिस इज 3, तो 2,3 पॉइंट मेरा सपोज यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट 2,3। तो वो दोनों के दोनों लाइंस इस 2,3 पॉइंट से पास हो रहे हैं। एज वेल एज उनके ऊपर एक और कंडीशन है, दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। नाउ सी, कितने लाइंस है, दो लाइंस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब ये सबको समझता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो दो लाइंस है और दो ही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दोनों लाइंस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैसे है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, वैसे एक सिंगल पॉइंट में से दो लाइन पास कराने हैं तो मैं कैसे भी पास करा सकता हूँ। वैसे एक सिंगल पॉइंट में से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं, बट ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रहेंगे क्या, नहीं। मेरे को ऐसे ही दो लाइंस लेने हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रहेगा, दूसरा दूसरे को। तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैं ये ले सकता हूँ, ओके। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड सेकंड क्या ले सकता हूँ मैं, ये दिस लाइन इज गोइंग टू
be parallel to y-axis. So now I can say that कि L1 this is the first line parallel to x-axis and L2 this is the second line passing to parallel to y-axis. So ये है आपके दो लाइंस. अब लाइंस तो मैंने जनरेट मतलब आइडेंटिफाई कर लिए हैं. अब मेरे को इनकी इक्वेशंस बनाने हैं. ये चीज़ आगे भी काम में आएगी. कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल जो स्ट्रेट लाइंस होते हैं उनके इक्वेशंस कैसे लिखते हैं उसका सिंपल ट्रिक होता है. देखिए जैसे L1 है, L1 ये लाइन जो है ये किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है. तो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है उसका नाम y से स्टार्ट होता है, उल्टा होता है. ओके तो इस लाइन का नाम कैसे स्टार्ट होगा, y इज इक्वल टू वही. एट द सेम टाइम ये लाइन किसको पैरेलल है, y एक्सिस को, मतलब इसका नाम कैसे स्टार्ट होगा, x इज इक्वल टू. ये सिंपल सी ट्रिक है ना. इज इक्वल्स टू के आगे क्या लिखना है, तो जैसे ये लाइन x को पैरेलल थी इसीलिए इसका नाम y इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ मैं. अब y इज इक्वल्स टू क्या, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये देखिए ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 पॉइंट से. इसमें देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है ये आपको समझता है. पहला कोऑर्डिनेट यानी ये x कोऑर्डिनेट होता है पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या होता है y कोऑर्डिनेट. तो इसमें y की वैल्यू क्या है 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 ये हो गया इस इक्वेशन का नाम. उसी तरह ये लाइन कौन से पॉइंट से, उसी पॉइंट से पास हो रही है. इसमें x कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू है 2, तो इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2. सो दस द टू इक्वेशंस या टू स्ट्रेट लाइन्स आर, फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू 3. अब देखिए जॉइंट इक्वेशन बनाने से पहले बनाते समय एक चीज़ ध्यान में रख लेना, आपका जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए. जनरल फॉर्म जनरली होता कैसा है, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में हमको चाहिए. मैंने अभी बताया था आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में हो. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं. अब ये बन गया जनरल फॉर्म, और मैंने क्या बताया था लेफ्ट हैंड साइड को कैसे डिनोट करना है, u से, पहले इक्वेशन के. इसमें देखिए ये 3 इधर चले गए y की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा y-3. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन का क्या होगा v. So thus we have obtained the two equations, u is equal to 0 and v is equal to 0, and therefore their combined equation is, कैसे लिखते हैं हम, u into v is equal to 0. So u का x वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड x-2, और v का वैल्यू क्या है y-3. बस ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, बस दिस इज योर कंबाइंड इक्वेशन. कितना हो जाएगा ये xy -3x -2y and +6. So this is the required combined equation. So this was the topic. इसके बाद में मैंने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सेकंड आपको दिया है करने के लिए. थर्ड क्वेश्चन मैंने करके दिया है. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आगे के वीडियो लेक्चर में मैं करके दूंगा. ये थोड़े से टिपिकल है बट है उसी फॉर्मेट के. इसमें इनमें भी कंबाइंड इक्वेशन ही हमको बनाना है, बट डेटा जो है थोड़ा टिपिकल है, तो इसको आगे के वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ओके, थैंक यू.